Okay, so talking about sinusoidal graphs or sine theta ka graph against y. So it is a sinusoidal graph which has its maximum point at 1 at 90 degrees, and it has its minimum point -1 at 270 degrees. This from here to here is called one period, right? If you study physics, this is also called the time for one oscillation, right? Okay. So this is Yes, sir. your sine graph, right? And when we're talking about a y is equal to cos theta ka graph, right? So y is equal to cos theta is basically, if you look here, it is shifted from here to here, and it's the same as a sine graph, right? So it's moved just here. So if you would look here, it would look like a sine graph till 270, right? So from here to here, Yes. from here to here, and then from here to here, and here to here. Okay, this is your cos theta graph, where the maximum point is at 0 and 360, which is 1, and the minimum point is at 180, which is -1, and it is at 0 at 90 degrees and 270 degrees. You basically just have to remember these graphs, and whenever they ask you to draw a graph, you will have to reproduce this graph, right? Now, looking at the graph for tan theta. Tan theta against y, the maximum point is at 45 degrees. So remember this, it is at 45 degrees. Then from it goes at a angle straight up. Towards 90 degrees, it goes at an angle which goes straight up. सर ये फिर 45 डिग्रीज हाईएस्ट पॉइंट कैसे होगा? 45 degrees highest point ऐसे होगा कि it is the point where it goes at the maximum, ना? It goes to infinity 90 degrees पे. Oh, you're talking about how is it at? हाँ, सही बात कर रहे हैं. It is not the maximum point, लेकिन it is equal to 1 at 45 degrees. Right. Okay. Now, अच्छा, the period for tan theta का graph is from 0 to 180. So 360 के अंदर there are two periods. Okay. Yes, sir. Right. So can you see 360 के बाद we have the same repetition, right? जी sir. Right. And then you have these two. Okay. So repetition आ रही है after 180, और यहाँ पे repetition आ रही है after 360, after 360. So इनका period 360 का होगा और tan theta का ग्राफ का period 180 का होगा. Okay. Right. Right. Yes, sir. So look, this is your graph of Cosine. cosine from here to here at 360. एक period end हो गया, right? Yes. And यहाँ पे this is your graph for sin theta, और ये 360 पे यहाँ end हो गया. And then looking at tan theta का graph, look at 1 it is 45 degrees, right? और ये जा रहा है infinite की तरफ, right? Yes. और again यहाँ पे हमारा एक period कहाँ end हो रहा है at 180. And again if we look, उसका 1 कहाँ पे आ रहा है इस point पे, this would be around 135. Okay. Yes, sir. 135. See. Yes, sir. So that's all about graphs, mainly. Okay. Then we have, okay. अच्छा यहाँ पे ना एक चीज होती है, for example we have यहाँ पे,
फॉर एग्जाम्पल कॉस 120, अगर हम कॉस 120 की वैल्यू देखें यहाँ पे ऑन दिस ग्राफ, वी नो दैट इट विल रिपीट आफ्टर हाउ मेनी साइकिल्स? सर कौन सा ग्राफ? कोसाइन का? कोसाइन का, उसका पीरियड कितना होगा? सर फिर से 360 का पीरियड होगा, राइट? जी सर। व्हाट इज द पीरियड फॉर ए कोसाइन ग्राफ? 360। 360 डिग्रीज, राइट? अब अगर 360 डिग्रीज है, सो देर आस्किंग के cos 120 की वैल्यू किसी और एंगल पे कितनी हो, मतलब किसी और एंगल पे कब आएगी, राइट? सो विच एंगल हैज द सेम वैल्यू फॉर 120। cos 120, राइट? वी नो कि 360 के बाद यहाँ पे अगर cos 120 यहाँ कहीं बनता है, राइट, समवेयर अराउंड हियर, सो इट विल बी द सेम हियर, it will be the same here, it will be the same here, right? Yeah. Right? So Yes. cos 120 की एक वैल्यू यहाँ पे होगी, एक वैल्यू यहाँ पे होगी, एक वैल्यू यहाँ पे होगी, एक वैल्यू यहाँ पे होगी. Okay, I believe this is not in your syllabus. Okay. So moving on, let's look at sine and cosine rules. अस्सलाम वालेकुम सर. Okay. So looking at sine and cosine rules, sine and cosine rule के अंदर क्या वैल्यूज क्या हमारे पास है, right? So sine rule के अंदर, this is sine rule. When we're talking about an angle, let's say talking about an angle A and talking about an angle B, right? So sine A over the opposite side A, this ratio is equal to sine B over the opposite side B, right? This is your sine rule for the same triangle, right? तो हम अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन देखें, right? So can you find the angle theta for me? अगर हमारे पास sin 65 over 10 is equal to sin theta over 9, Right. yes? Yes. तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? Sir 54.7. 64.7. Sir 54. 54.7 question. अभी यही आ रहा है. Okay. So can you tell me the same for B? सर आप क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देंगे? Sir 2.4. सर 66.8. 69.8 है. Part talking about part C or part B? सर पार्ट बी. 66.8, that's correct. Go for part C.
Okay, sir. $69.8. Again? 69.8. ओके, 69.8। इसके अलावा भी कोई वैल्यू आ सकती है? ओके, मूविंग ऑन। Sir, 70. नहीं नहीं, 69.8 ही है। Okay, so moving on, let's go to cosine rule now. So this is your cosine rule, which says a square a square, which is the longest side, is equal to b square plus c square minus 2bc cos a. Okay, so this is the formula. इससे याद कर लें, right? And if you apply the question, let's put it somewhere. So, sorry, not a square is not the largest side. A square is the side which is opposite to the angle, right? So, for example, in this case, A would be AC, okay, right? Yes, sir. So, it would be AC squared is equal to 9 square plus 18 square minus 2 bracket 9 bracket 18 cos 50. Right? Can you give me the value? It would be how much? So इसका स्क्वायर रूट लेना है, Right, sorry? स्क्वायर रूट लेना है इसका. स्क्वायर रूट लेना होगा ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे आपके पास फिर वरना वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू वुड बी AC स्क्वायर्ड की, राइट? Yeah. 14.026. राइट, सो अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर दें तो 14.0. राइट, सो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, और in this you will have to find the angle. So do question number 1 and then do question number 3.
सर 9 आ रही है वैल्यू. 9 RE है value of 1. the side AC, right? Yes sir. 9, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दो मुझे. Sir 9.73. 9.7 क्यों आई? आप मुझे बताएं आपने पूरा क्या लिया. सर वो मैंने फॉर्मूला इनपुट किया. ठीक है, फॉर्मूला क्या डाला बताओ. ओ सर वो गलत हो गया फॉर्मूला गलत हो गया. ओके, ट्राई अगेन. या सर आपके पास वैल्यू आई, क्या वैल्यू आ रही है? 8.619. ओके, इफ यू पुट दैट इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 8.62. 8.62, 3 सिग्निफिकेंट्स. ओके. Yes. अब मुझे एंगल ढूंढ के बताओ इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का. यू विल सर पुट द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, लेकिन उसको आप रीअरेंज करेंगे. सर इसमें कोसाइन रूल यूज करेंगे ना इसमें भी. कोसाइन रूल ही यूज करेंगे, बस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. मैं करके दिखाऊं, एंड देन यू कैन सॉल्व. एक्स वाई जी तीनों के एंगल निकालना जी के अंदर. ओके. ओके सर. तो इसके अंदर जो हम करेंगे, वी विल डू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 8 ब्रैकेट 11 साइन p. ओके. तो 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर ओवर माइनस 2 ब्रैकेट अरे 8 ब्रैकेट 11 और साइन इनवर्स इज इक्वल टू p. ओके. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ. वैल्यू क्या आ रही है? सर 36.22. सॉरी, दोबारा बताना. 36.22. 36.22. दोबारा चेक करो, कोई चीज गलत तो नहीं डाल दी. नहीं सर 9 स्क्वायर एग्जैक्ट सेम चीज डालिए. साइन इनवर्स, यस सर. शिफ्ट साइन इनवर्स 9 स्क्वायर -8 स्क्वायर -11 माइनस स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर अपॉन -2 into माइनस 8 2 इंटू 8 into 11. इंटू 11. ऐसे ही है. Yes sir. 36.22. बीच में मेरे साथ भी 36.2. ओके, लेट्स चेक अगेन. हमारे पास साइन पी चाहिए हमें. सॉरी, कॉस पी, राइट, माय मिस्टेक. राइट, कॉस होगा. Cos. 53.8. Yes, 53.8 is your angle. Now you'll have to do the same for angle Z, X and Y.
सर एंगल एक्स की वैल्यू 60 है. ओके, उसके बाद सर कर रहा हूँ अभी. इसके आगे ये है. सर 87.8 है जेड की वैल्यू. सॉरी अगेन, वाई की वैल्यू क्या आ रही सर जेड की है, जेड की क्या आ रही है? 87.8. 87.8 डिग्री. या सर आपकी भी सेम आ रही है? जी सर. ओके, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा, वाई के लिए आप एक और काम भी कर सकते हैं और आप इस मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं. मैं तो कहूंगा इसी मेथड से निकालें, लेकिन एक और मेथड क्या है जिससे आप निकाल सकते हैं वाई की वैल्यू. आपके पास दो एंगल्स मौजूद हैं, तो आप थर्ड एंगल और कैसे निकाल सकते हैं? ये दोनों ऐड करके -180. एग्जैक्टली राइट, सो यू कुड डू दैट एज वेल. 32.2. 32.2 गुड हो गया. अच्छा, यहाँ पे अच्छा, अब हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं इसके अंदर, हाफ ए बी साइन थीटा का. अब इसके अंदर हमें एक एंगल दिया हुआ होगा और दो साइड्स दी हुई होंगी. साइड्स और एंगल के अंदर हम क्या चीज देखेंगे कि हमारा एंगल जो है दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए. ठीक है, हाफ ए बी के अंदर ये दोनों साइड्स और साइन थीटा. थीटा कौन सा? ये वाला. ओके यस सर. राइट. तो इससे हम जो है सॉल्व कर लेंगे एरिया के लिए. तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ए ई एंड डी का भी बताओ. क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले ए और ई करो, फिर मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 2. आप खुद ट्राई करना, नहीं होता फिर हम वो ट्राई करेंगे. तो ये फॉर्मूला फिर से बता सकते हैं आप? हाफ ए बी साइन थीटा. साइन थीटा और थीटा हैज टू बी द एंगल इन बिटवीन दीज टू साइड. ओके. Sir, for A, I'm getting 10.036. अगेन 10.036 or 10.04.
एग्जैक्टली। तो अगर हम इसको 3 से इग्नोमेंट पे गेस कर दें तो 10.0. 10. ओके 10.0 ई E is 22.7. 22.7 ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो और मुझे बताओ क्या होगा इसके अंदर। Sir, same ही करना है. So we will remove the 1/2 in the formula. So it will be just AB Yes. sin theta. यस तो हमारे पास ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि दिस वुड बी 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, राइट? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। 107.5. अगेन 107.5. और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें 3 से इग्नोमेंट पे इसको 108. 108 एग्जैक्टली 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो दिस इज बेसिकली हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंडेड। ओके यहाँ पे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सारे कर लिए हैं, उसके बाद फिर इनकी एप्लीकेशन होगी, राइट? सो यहाँ पे हम डन करते हैं। डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री? नो सर. ओके लेक्चर आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। एनी फर्दर क्वेश्चंस? तो फिर मैं यहाँ एंड करना चाह रहा हूँ, मेरी तबीयत बहुत ठीक है नहीं आज। No sir. ठीक है, क्वेश्चंस फिर आप ये सॉल्व करना और मुझे बताना कहाँ इशू आ रहा है, तो हम वो फिर बैठ के सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। वी कैन डू दैट ऑन थर्सडे जो हमारी क्लास होगी। ओके Okay sir. सर हाफिज। बुक ये आप लोग के पास है या नहीं है? नो सर. Sir ये वाली नहीं है मेरे पास. I have डू यू हैव दिस बुक और नॉट? not this. नो सर. अच्छा मैं एक काम करूंगा, आई विल सेंड दिस बुक ऑन द गूगल क्लासरूम। या सर यू जॉइन द गूगल जी, sir. क्लासरूम? ओके आई विल सेंड दिस वहां पे, और तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एज वेल, और आप फिर मुझे भेज देना। सही. ओके Okay. यू कैन सॉल्व देम एंड सेंड देम एज हो जाते हैं। सो वी डन विद ट्रिग्नोमेट्री आज। ओके Okay. हाफिज। Allah. सर यस सर आप फ्राइडे के बजाय मेरी क्लास किसी और दिन ले सकते हैं, मतलब थर्सडे से पहले? थर्सडे से पहले या थर्सडे से पहले मेरा पूरा बुक हो गया। ट्यूसडे आ सकते हो आप, ट्यूसडे को हम कर सकते हैं 6:30 to 7:30। ओके सर ठीक है. ओके फिर मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। Book group में Google Classroom में कैसे डालेंगे, मतलब how do I see it? अगेन How do I see this book in the Google Classroom? मैंने join किया. आई विल सेंड दैट, वो एज ए वो आएगी आपके पास, डायरेक्टली आ जाएगी, अनाउंसमेंट के तौर पे होगी और मटेरियल के तौर पे आपके पास आ जाएगी। सो यू विल गेट दैट एज अ नोटिफिकेशन टुडे इंशाल्लाह, Okay. इफ नॉट मैक्स बाय टुमारो। सही. ओके एनी फर्दर क्वेश्चंस? No sir. नो सर. ओके हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर.